تم سے ہوا تم سا ہوا وہ اجنبی تم سا ہوا. اب بتائیں کیا ہوا؟ حسن میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے مانیا. آپ ہی ابھی بس ان کی اسٹیٹ ایسی نہیں ہے، آپ بس انہیں تھوڑا سا وقت دیں. میں وقت کے ہاتھوں کشمالا میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں ایموشنل ہو کر غلط فیصلے کر رہا تھا. شٹ اپ کشمالا. تمہارے لیے اب میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تم میرے کردار پہ انگلی اٹھاؤ گے؟ ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کو ہراس کرنے کی؟ کیا ہوا ہے؟ جو سمجھ ہی نہیں آ رہی وانیا، میں بس ان کو کیسے مناؤں. پتہ نہیں وہ میری بات مانے گا بھی یا نہیں. آپ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، آپ بس اوور تھنک کر رہی ہیں. اس میں نروس ہونے کی یا گھبرانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب پانی سر سے گزر جائے گا نا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بچے گا نہیں آپ کے پاس. کیوں کال کر رہا ہوں میں اس کو؟ سب کچھ بھلا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس نے اور میں نے دھتکار دی. تم سے تمہاری زندگی میں شامل ہونے کی بھیک مانگتا ہوں. کا یہ وقت ختم ہو گیا. آپ میری طرف دیکھیں، کچھ ختم نہیں ہوا ہے. آپ رونا بند کریں. اس نے اتنی صفاقی سے مجھے بول دیا کہ میں اس کے پاس اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں نے اسے مرتے ہوئے وٹنس کیا. ہمدردی میں اس کے پاس گئی ہوں. بتاؤ وانیا، میں ہمدردی میں گئی تھی. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ لوگ بھی کوئی پرانی باتیں دل میں لیے بیٹھے ہوں گے. اس میں سمجھنے نہ سمجھنے کا کیا ہے امی؟ بس جائیں اور بھائی کی شادی کی تاریخ لے کر آ جائیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لیجیے گا. جو کچھ بھی کر رہی ہے نا ہمدردی میں نہیں کر رہی. وہ ایک برا فیصلہ تھا اور اس میں سب شریک تھے. آپ بھی تھے، وہ بھی تھی. اور کیا آپ تابی اور امی کا سائیڈ نہیں لیتے؟ تو اگر اس نے اپنے پیرنٹس کا سائیڈ لے لیا تو کیا گناہ کر دیا؟ گلا تو اس کو کرنا چاہیے حسن بھائی. کیوں ہر بات پہ اس سے جسٹیفیکیشن لینے کے لیے چلے جاتے ہیں آپ؟ اس کے باوجود اگر وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سائیڈ پہ رکھ کے اگر آپ کو صفائی دینے آئی تھی تو کیا کیا آپ نے؟ دھتکار دیا نا اسے. پھر بھی وہ قصوروار ہے. کیوں اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں حسن بھائی؟ حسن بھائی، رشتوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم رشتوں کو توڑ دیں. بھائی کم سے کم انسان کو انسان ہونے کا مارجن تو دے. اور جب غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے تو پھر اس طرح نہیں کیا جاتا. درگزر کیا جاتا ہے، بھلائی جاتی ہے باتیں اور ریکنسائل کیا جاتا ہے دوبارہ. ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی. وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی. اس کے ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی. زینب کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اچھی زندگی گزارے اور اپنے والد کو خوش دیکھے. علی ایک زندہ دل اور محنتی لڑکا تھا. وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا تھا. علی ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا. زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی. علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا. چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا. زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا. جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی. منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے.
व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशियों में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशियों में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे।
व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर ऐसे ऐसे उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशियों में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर ऐसे ऐसे उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशियों में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे।
व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशी में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशी में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे।
व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर ऐसे ऐसे उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशियों में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर ऐसे ऐसे उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशियों में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे।
व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशियों में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशियों में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे।
व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशी में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूअर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। व्यूअर्स, अली अक्सर कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा, तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मोहब्बत खुशी में नहीं, मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूअर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे।
व्यूअर्स, अली अक्सर कहता मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर ऐसे ऐसे उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। ज़ैनब ने रोते हुए कहा मोहब्बत खुशी में नहीं मुश्किल में साथ देने का नाम है। लेकिन ज़ैनब के रिश्तेदार इस शादी के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ख़ानदान का दबाव। आखिरकार ज़ैनब ने वालिद की खातिर खामोशी से इनकार कर दिया। अली ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। कई साल बाद ज़ैनब एक दिन बाज़ार में जा रही थी। जब उसने अली को देखा, अली बैसाखी के सहारे चल रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। अली ने सिर्फ इतना कहा उम्मीद है तुम खुश हो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा हाँ खुश हूँ। लेकिन जैसे ही अली वहाँ से गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू बहने लगी। कहानी के अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक जिंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के